Hello everyone, this is Deepti Jaishwal and welcome to Rainbow Public School. We are going to discuss derivations of motion of a car on a plane circular path, and second is a derivation for motion of a car on a banked road. Okay, so now we discuss very first topic, a motion of a car in a plane circular path. Here is a circular path. This is a center of circular path and the radius of circular path is r. A car of mass m is moving in this circular path with velocity v. Okay, and here this is the car of mass m. So weight of the car act vertically downward. ओके, ये जब mg इसका डाउनवर्ड लग रहा है देन इसका एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा दैट इज वर्टिकली अपवर्ड. सो रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस कार mg इज r वर्टिकली अपवर्ड. अब यहाँ पे क्या होगा, एक हमें रिएक्शन एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम यहाँ सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है विच इज mv स्क्वायर अपॉन r और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. एंड इस सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता कहाँ से? जो कार है उसके टायर एंड रोड के बीच फ्रिक्शन की वजह से ये हमें मिलता है. ओके, सो या so first is a motion of a car on plane circular path. Okay, so here let a car of mass m is moving in circular path of radius r. Okay, and the velocity of car is v. Okay, so now following forces are act on each car. So following forces are act on the car. So what are the forces? First is a weight of the car vertically downward. So we write here weight of the car. So what is the weight? mg, and vertically downward. Okay, and second force act on the car is a reaction force r, that is act vertically upward. So reaction force r vertically upward. Okay, and the next is a centripetal force which are mv square upon r. Okay, so from the diagram we see here r and mg दोनों क्या एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. सो हियर फ्रॉम डायग्राम r is equal to mg. This is the equation 1. Here यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. ये किससे मिल रहा है? हमें फ्रिक्शन से मिल रहा है. फ्रिक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है. सो लेट force of friction is
friction is F, and coefficient of static friction is mu F. Okay, so we know that from the definition of static friction, we know that F is equal to mu R. Okay, so we put the value of R from equation first. So put the value of R from equation first. Okay, so here we write F is equal to mu F and the value of R is equal to mg. So we write here mg. This is the equation second. Okay, and here अब ये सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है. किसी भी सर्कुलर पाथ में मूविंग करने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है, ताकि हमारी कार स्लिप ना हो, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए. ओके, अगर ये इससे लेस होगा तो कार क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी. तो फॉर कंडीशंस रिक्वायर्ड, friction force are always more or equal to the centripetal force. So force F is always greater than to the centripetal force. Okay, to avoid flipping the car. So we here write to avoid flipping the car. To avoid flipping the car. Condition required. So here we put the value of F from equation second. So we write here mu F mg is greater or equal to the mv square upon r. Here m and m are cancelled, so we write here mu g v square upon r. So here we find the value of v square. V square is equal to mu r g. Then value of v is root mu f r g. Okay, this is the velocity of car, but maximum velocity v max is equal to the mu f r g. ओके, तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि एक प्लेन सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के टाइम पे हमें मैक्सिमम इस वेलोसिटी से मोशन करना चाहिए. अगर हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करेंगे, टर्निंग पॉइंट पे मोशन करेंगे, देन क्या होगा, हमारी कार स्लिप हो जाएगी. रीजन क्या है यहाँ पे हम देखते हैं. हम जब टर्न पे मूविंग करते हैं, देन हमें मूविंग करने के लिए हम मूविंग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से फ्रिक्शन फोर्स मिलता है. ओके, अगर हम इस वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से मूविंग करेंगे, देन जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी कार स्लिप हो जाएगी. तो दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू टर्न ऑन अ सर्कुलर पाथ. ओके, सो नाउ वी डिस्कस सेकेंड डेरिवेशन, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ banked road. Motion of a car on banked road. Banked road. ये banked road क्या है? अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस डेरिवेशन में कि हमें टर्निंग पे, सर्कुलर पाथ के टर्न पे जब हम टर्न करते हैं, देन हमें उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा मिलना चाहिए. जब हमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगा, देन हम इजीली टर्न कर पाएंगे, फास्ट वेलोसिटी से भी हम टर्न कर पाएंगे. लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, देन हमारी कार
स्लिप हो जाएगी। देन अगर हम ये सोचें कि हम उसका फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते जाएं देन मैक्सिमम वेलोसिटी से हम कार को निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जब हम फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे देन जो टायर होंगे वो जल्दी फ्रिक्शन की वजह से बहुत जल्दी र्यून्ड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ओके, देन इसके लिए क्या किया जाता है कि हम टर्निंग पॉइंट पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी से निकल पाएँ बिना स्लिप हुए। देन इसके लिए जो रोड है उसको थोड़ा सा बैंक्ड किया जाता है। बैंक्ड किया जाता है मीन्स, तो ये रोड है, देन इसका इनर पार्ट को थोड़ा सा स्लोप शेप दे दिया जाता है, जिससे कि इनर पार्ट है थोड़ा सा इसका झुक जाता है और ये जो आउटर पार्ट है ये अब थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। ओके, तो ये सेंटर है, ये किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर पाथ का सेंटर की डायरेक्शन में, मीन्स ये जो इनर पार्ट है जो सेंटर की तरफ है उसको हम थोड़ा सा उसमें हम एक स्लोप डालते हैं, ये थोड़ा सा नीचे इनवर्ड आता है, डाउनवर्ड आता है, एंड ये आउटर पार्ट अपवर्ड। तो इस तरह से रोड में क्या होता है कि जब हम मूविंग करते हैं तो जो टायर का जो फर्स्ट टायर होता है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है एंड सेकेंड टायर जो होता है कार का वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से ये बैंक्ड हो जाती है। ओके, तो ये होती है बैंक्ड रोड। सो हियर theta, roads are banked with the horizontal and create angle theta. Here a car of weight m, so the force act weight mg vertically downward. Okay, weight of the car equal to the mg act vertically downward. So here reaction force is produced, so reaction force is always perpendicular to the road. So here this is the road, so reaction force is perpendicular to the road. Okay, अब यहाँ पे क्या है, हम एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमेशा ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हमें किससे प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शन जो ये कार है, कार के टायर एंड रोड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, दैट इज अ फ्रिक्शन F. Direction of friction of force of friction is towards the center of the circular path. ये फ्रिक्शन कहाँ की, किस डायरेक्शन में लगेगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। ओके, इस फ्रिक्शन की वजह से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब हेयर नाउ वी रिजॉल्व द रिएक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन टू पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टू फैक्टर्स. So here we resolve the reaction force into factors, horizontal and vertical. Okay, so this is the theta, so this is also theta, and here हम ये पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा जिस भी फैक्टर के साथ टच रहता है दैट इज अ कॉस फैक्टर. सो हेयर दिस इज अ आर cos theta and this is a r sin theta. Okay, and now we resolve force of friction into factors. So here two factors, first is a horizontal and second is a vertical. Okay, so this is a theta, so this is also theta. So theta is joined with these lines, so this is a cos theta, f cos theta. Okay, and here this is a f sin theta. Okay, so here now we start. Let
rods are inclined with angle theta with the horizontal, okay. And now a car of mass m is moving with velocity v on circular path of radius r. On circular path of radius r. Okay. So here following forces are act on the car. Following forces are acts on the car. So first force is a weight of car vertically downward. So here weight of car mg, direction vertically downward, okay. And second is a reaction force R perpendicular to the road. Reaction force R perpendicular to the road, okay. And now we resolve the reaction force R and friction force F. Now we resolve reaction force into two factors, r sin theta and r cos theta, okay. And force of friction also resolved. Force of friction F also resolved. Also resolve in two factors, horizontal and vertical, F sin theta and F cos theta, okay. So now see to the diagram. यहाँ पे ये mg एंड f sin थीटा दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड r cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड है. तो ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे हैं. सो फ्रॉम द डायग्राम r cos theta is equal to the mg plus f sin theta. So we write here mg plus f sin theta, okay. Now from subject to the mg is equal to the r cos theta minus f sin theta, okay. This is the equation first. तो ये वर्टिकल फैक्ट कंपोनेंट्स इस तरह से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. इसके बाद हॉरिजॉन्टल फैक्टर्स को हम देखेंगे. देन हॉरिजॉन्टल फैक्टर्स में r sin थीटा सेंटर की तरफ है, f cos थीटा सेंटर की तरफ है, ओके. सो हेयर और इसके बाद हम देखेंगे ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स है. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. और इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमें मिल रहा है क्या, ये सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों फोर्सेस को मैनेज कर रहा है, बैलेंस्ड कर रहा है. सो हियर mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू द r sin थीटा प्लस f cos थीटा, ओके. ये क्या था,
ये फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है, जो कि सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड इसी फ्रिक्शन फोर्स से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट. डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड by equation first. So here mv square upon r is divided by equation first, means mg is equal to the r cos theta, r sin theta, r sin theta plus f cos theta upon, and equation 1 r cos theta minus f sin theta. Okay, here m and m are cancelled, so we write here v square upon r g, and here okay, and here we put the value of f, and we know that f is a equal to the mu r. Okay, so we put the value of f. So r sin theta is equal plus mu r cos theta upon r cos theta minus mu r sin theta. Okay, so here यहाँ से हम r कॉमन करेंगे. So v upon r g is equal to the r, then sin theta plus mu cos theta upon, यहाँ से भी हम r कॉमन लेंगे, then r cos theta minus mu sin theta. Okay, r and r are cancelled. अब इस पार्ट से हम cos थीटा कॉमन लेंगे. सो v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू द कॉमन cos थीटा. यहाँ से हम cos थीटा कॉमन लेंगे, देन ये हो जाएगा tan थीटा, एंड हेयर यहाँ से हम cos थीटा कॉमन लेंगे, देन दैट इज अ म्यू, एंड नाउ दिस पार्ट आल्सो कॉमन cos थीटा. सो हेयर 1 माइनस म्यू, एंड हेयर tan थीटा. ओके, so cos theta and cos theta are now cancelled. So here we find the value of v square tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta, which is rg. Okay, so here the value of v root tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta and rg. This is the velocity of car to at a banked road to avoid the slipping. तो इस वेलोसिटी से जब हम किसी बैंक्ड रोड पे ट्रैवल करते हैं, देन वो कार स्लिप नहीं होती है. ओके, क्या देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो does not depend on the mass of the object, mass of the car. ओके, ये दोनों डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो थैंक यू.